Hello everyone, welcome to our channel CPS Online. This video was long overdue, long planned, but due to some unavoidable situations or reasons you may say, I couldn't finish it. So here it is today. We will discuss the strategy for compartment exam, Mathematics CBSE 2020. Right. We have already made a similar video for the compartment exam Science 2020 that is going to happen anytime soon. You have to wait for the notification on CBSE website. Okay, the last date for the application process is already passed. That was on 21st August 2020. Okay, I hope everyone have filled that form. No one is left out. Coming to the video, compartment exam for mathematics is considered tough, right? But let me tell you, it is not. Most of the students have phobia of the mathematics subject itself. You have not to be feared for anything, be it anything. Okay, it is going to be simple. It is going to be straightforward. The questions will be asked directly. Most of the questions will be on the format basis of NCERT, so you have not to worry about anything. I will discuss each chapter, each topics, which topics in minimum. Okay, how you can prepare for the compartment exam with minimum efforts, that I am going to discuss in this session. If you haven't watched the compartment exam video for science, just go and watch that video. There we have discussed in detail the previous year chapter wise analysis, which chapter you have to cover first, which chapter you have to cover last, or which topics you have to leave, which topics are most important that you could not afford to leave. Okay, so everything is discussed there. Just go and watch that video, and I know that will be helpful to you guys. Okay, in this video also we will discuss about the eligibility criteria, how many attempts can you give, how many subjects can you apply for. That these questions are already discussed in that video also. We will discuss today in this session also, where to do the registration, important chapters and topics for exam. Okay, so everything is going to be discussed in this session. The previous paper wise analysis is also here. The CC pattern, the year chapter is not covered here totally. Okay, the last 2017 was the CC pattern that was not further taken after 2018. Okay, so that is not discussed here before 2017. Up to 2017 the paper wise analysis is here. And let me assure you first, this is not a foolproof plan. Okay, you are not going to score 100 out of 100 unless until you get lucky, or I get lucky that I chose the topic that you have to study. But for scoring good marks, you have to study hard, you have to focus, you have to practice. Okay, yeah, this is the important part. You have to practice very much. This is mathematics, not any theoretical subject. You will get marks as you practice. That's it. This is the concept behind the mathematics. This is not theoretical. You are not going to mug up the questions and answers for each of the topic. You have to know the pattern. You have to revise the pattern. You have to practice it. Then only you can score good marks in the CBSE exam. So first of all, we will discuss the eligibility criteria. Who is eligible? So if you have been allotted compartment in your board exam, okay, that was announced in June or July, I think. So you are eligible for the compartment exam of that subject. You cannot appear for any other subject that you have already passed. Okay, if you want to improve the marks, there is a separate exam for that. Improvement exam is called that. Okay, so you can apply in that criteria. Where you can apply, you can directly apply on the website. You can go to the school authority also. Both options are viable. Okay, first, again I am saying the last date is already passed, so this is not very similar to the topic, but just to let you know guys, I am discussing this. Okay, syllabus for the exam will remain same as of your board exam. जो भी आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस था, वही सिलेबस अभी भी रहेगा आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, चेंज नहीं होगा. अगले साल में जो बोर्ड होगा उनका सिलेबस भले ही चेंज हुआ है, आपका नहीं चेंज होगा. आपका जो सिलेबस है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिलेबस था, वही रहेगा.
अगर आप किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए हैं तो आपको प्रैक्टिकल का ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप थ्योरेटिकल में फेल हुए हैं तो आप थ्योरेटिकल का ही एग्जाम देंगे, आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने की जरूरत नहीं। हालांकि मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपका 100 मार्क्स का पूरा पूरा थ्योरेटिकल ही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर जस्ट पास होना है तो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं करना है। कुछ कुछ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स से ही आप पास उसको कर लेंगे एग्जाम को। तो पास करना पास होना बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें मैथमेटिक्स में, बट आपको अच्छा स्कोर करना है। यू हैव टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम before the exams that you have to score good marks. For that you have to continuously put more effort day by day. As the day is going by, you have to practice more and more questions. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी इस बार का बोर्ड एग्जाम का पेपर था, पिछली बार का कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर, पिछली बार का बोर्ड एग्जाम का पेपर, और उसके पिछली बार का कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर, यानी कि 2 साल का कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर और 2 साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर, एटलीस्ट आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट आपको वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए, एटलीस्ट ये 2 साल के कंपार्टमेंट एग्जाम एज वेल एज द बोर्ड एग्जाम्स, रेगुलर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हियर इट इज द चैप्टर वाइज एनालिसिस। 2017 का मैंने ऑरेंज इसलिए किया हुआ क्योंकि सीसी पैटर्न था, राइट, और सीसी पैटर्न में आपका बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अभी के पैटर्न में, तो मैंने उसको ऑरेंज कर रखा है बस ऑब्जर्व करने के लिए। वो पैटर्न आपके काम का नहीं है ज्यादा। आपका जो काम का पैटर्न है वो 2018, 2019 और 2020 का पेपर तो आपने दिया ही, तो आपको पता होगा ही, पेपर आपका होगा ही ऑलरेडी कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सबसे पहले आपको इसको, ये टेबल को समझा देता हूँ कैसे आपको ये रीड करना है। जो ये ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, सभी को दिख रहा है ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये चैप्टर्स बहुत ही इजी हैं और स्कोरिंग है। दीज चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। ओके, ग्रीन वाले से जो मैंने कर रखा है वो चैप्टर्स आपको पहले पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इजी हैं और ये स्कोरिंग है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली जो मार्क्स हैं वो कंसिस्टेंट मार्क्स है। रियल नंबर से 6 मार्क्स का, लीनियर इक्वेशन से 5 और 9 मार्क्स, अबव 5 मार्क्स का आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 मार्क्स, ट्राइंगल्स 8 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 to 9 मार्क्स। ये जो पैटर्न है, एक तो सीबीएसई ऑलरेडी ये क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज पैटर्न आपको बताता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने पैटर्न बना रखा है, एनालिसिस कर रखा है, ये मैंने पेपर वाइज एनालिसिस किया हुआ है। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं उनसे मैंने एनालिसिस किया हुआ है इन सारे चैप्टर्स का, ठीक है ना, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। अगेन आप सभी को मैं बताऊंगा कि ये जो ग्रीन वाले हैं इन चैप्टर से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें कुछ फिक्स्ड है क्वेश्चन। जैसे रियल नंबर से अगर 6 मार्क्स का है, इसमें 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है आपको कि कौन से टॉपिक आना है, कौन सा क्वेश्चन आना है 2-3 मार्क्स का, ठीक है, वो फिक्स है। ऐसे हर एक चैप्टर से जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको बस ये जानना है कि पहले स्टार्ट कैसे करना है, ग्रीन वाले चैप्टर्स जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। आप लोग बुक में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, पहले इन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वो कोई सा भी चैप्टर हो सकता है, आपको जो अच्छा लगता हो वहां से आप शुरू करिए और विद इन नेक्स्ट 7 to 10 days कंप्लीट दिस चैप्टर्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले जो कुछ टाइम बचेगा उसमें आपको ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर से कर रखा है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का होगा, प्रोबेबिलिटी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दिख रहा है ना आपको, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर्स आपको मतलब स्टडी करना है, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लू से कवर किया हुआ है। ग्रीन के बाद इन चैप्टर्स को कवर करना है क्योंकि ये थोड़े से मतलब ट्रिकी चैप्टर है, आप कह सकते हो, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी चैप्टर है। आप इनमें थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा ये ग्रीन चैप्टर से। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो go through this chapter also, area related to circle, statistics, circle, coordinate geometry, quadratic equation, polynomials, ठीक है। इन सब चैप्टर्स पे आप जाइए अगेन, ठीक है। तो आप कैसे भी जा सकते हैं, हालांकि ये जो मैंने डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर कर रखा है, आप मतलब
पलट भी सकते हैं इसको, पैटर्न को आप ग्रीन के बाद लाइट ब्लू में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे चैप्टर्स ज्यादा हैं और स्कोर करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वहां पे इन चैप्टर्स को कवर करेंगे आप लोग, आप अगर 1 2 3 सर्कल एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टैटिस्टिक्स, इन चैप्टर्स को आप पहले ग्रीन के बाद इनको कवर करेंगे, तो आपका देखिए जो मार्क्स है डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपका ज्यादा कवर होगा इसमें, ठीक है। तो वो चीज आपको देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। बट स्टार्ट कैसे करना है, ये ग्रीन वाले से। अगर आप ग्रीन वाले चैप्टर्स बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो देखिए आप एटलीस्ट कितना स्कोर कर लेंगे, 6 5 11 7 18 26 30 38 45 मार्क्स इजीली, 45 टू 50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं सिर्फ ग्रीन, जो इजी चैप्टर्स हैं इनके प्रैक्टिस से, ठीक है। इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी चैप्टर्स के आप अगर फॉर्मूले और हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके जाते हैं, यू विल बी एबल टू स्कोर इजीली 70 टू 80 मार्क्स, ओके, इजीली, वेरी इजीली। सो बस आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करना है, आपको घबराना नहीं है कि मैथ्स है इसलिए इसमें हम फेल हो जाएंगे या ज्यादा बच्चे इसमें फेल होते हैं। ये एक फोबिया बना हुआ है स्टूडेंट्स में, डर बन गया है कि मैथमेटिक्स है तो ये टफ होगा। जी बिल्कुल टफ नहीं है, आपको बस स्ट्रेटेजिकली और कंसेप्ट, देखिए मैथ्स में कंसेप्ट तो आपको याद रखना ही रखना है। विदाउट कंसेप्ट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर न्यू टू यू, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप कोई भी पैदा नहीं हो गया है और उसको पॉलिनोमियल्स पैदाइशी नहीं आता है, आपको कुछ इसमें पैटर्न है, कुछ तरीके हैं, फिक्स हैं, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप भले एक बार देख के समझ जाएं, मगर समझने से कुछ नहीं होगा, आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे, ओके। दिस इज ह्यूमन माइंड, यू विल फॉरगेट इट इफ यू विल नॉट रिवाइज, यू विल फॉरगेट इट। सो यू विल हैव टू कीप रिवाइजिंग कंटिन्यूअसली, प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके एकदम जहन में बैठ जाएगा वो क्वेश्चन, कि आपके सामने जैसे वो क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पैटर्न आपको फिक्स रखना है या तैयारी करते हुए। तो ये था चैप्टर वाइज एनालिसिस सभी चैप्टर्स का, कि कौन से चैप्टर से हम शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स पे कि किन चैप्टर्स से हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं ये टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स आपके मिनिमम हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये आएंगे ही या नहीं आएंगे, बट ये कम से कम आपको कवर करना है। इसके अलावा चैप्टर में बहुत कुछ है, बट कम से कम ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसमें आपका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आपको आना चाहिए। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान से एकदम, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, शो दैट √2 and √3 etc. दिस टाइप ऑफ नंबर आर इरेशनल नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगातार क्वेश्चन आता ही रहता है, हर बार ही लगभग देखने को मिलता है कि आपको ये शो करना है इरेशनल नंबर है, 2 नंबर का, 3 नंबर का आता रहेगा, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ, ये थोड़ा सा मतलब ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन एचसीएफ निकालने कई सारे तरीके होते हैं, बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जानबूझ के देता है बोर्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको मेथड एकदम याद हो जाए, क्वेश्चन आते ही आप तुरंत पैटर्न शुरू कर दो, ठीक है। आपका टाइम बोर्ड में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सो दिस वर द टॉपिक्स फ्रॉम रियल नंबर चैप्टर 1। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, इसमें आपका जो मोस्टली क्वेश्चन आता है मैंने देखा, जो फाइंडिंग द जीरोज फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा, जैसे x² - 4x + 5, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और पूछ देगा कि इसके जीरोज फाइंड करो, तो उसके जीरोज फाइंड करने के लिए आपके बुक में 3-4 मेथड दिया हुआ है, ठीक है। आपको उन मेथड्स ध्यान रखना है, जो उसमें इंपॉर्टेंट मेथड है वो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये बहुत ही आसान चैप्टर है। एक पहली बात तो इसमें सारे टॉपिक्स आपसे कवर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। बट फिर भी जो 2 क्वेश्चन मैंने देखा कि कंसिस्टेंटली ये आ रहे हैं, ये पहला है कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड करने को बोल देता है। कोई सा भी 2 इक्वेशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, और कह देगा कि इनके सॉल्यूशन फाइंड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे बहुत सारे पूछे जाते हैं। देन आता है वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल स्पीड, स्ट्रीम रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सेट्रा। मतलब कुछ वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम कौन से होंगे, जैसे स्पीड दे दिया होगा उसमें, और उस वर्ड से आपको इक्वेशन बनाना होगा लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया होगा,
वैसे ही इन वर्ड वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं इनसे आपको वो इक्वेशन बनाने आना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के आपको इंग्लिश आनी चाहिए इसके लिए, राइट, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को आप पढ़ना जानते हैं, आपने प्रैक्टिस किया हुआ बहुत सारा, तो आपसे आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार इक्वेशन बन जाएगा तो इक्वेशन बनने के बाद आपको बस सॉल्व करना है दोनों लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। तो उसमें भी जो दो क्वेश्चन जनरली मैंने देखा, स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम और स्ट्रीम रिलेटेड प्रॉब्लम, ये था। तो इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस नेचर का है, रियल है, इमेजिनरी है, दो टाइप ऑफ, ठीक है। देन वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बुक में डायरेक्टली दिए हुए हैं। एनसीईआरटी आप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में डायरेक्टली ये सारा पैटर्न दिया हुआ है। एनसीईआरटी से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के डायरेक्टली सॉल्व करें। लगातार 4-5 साल के पेपर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर का कलेक्शन होगा ही, होपफुली आपने बोर्ड एग्जाम के लिए खरीदा ही होगा। तो उसमें से जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उनको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी बुक पे मत जाइए। बुक से अगर आपको कोई फॉर्मूला या कोई थियोरी आपका छूट गया है तो फिर रेफर करिए बुक को, अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम, दैट्स फॉर श्योर, ओके। सो चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, ठीक है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स आपका फॉर्मूला है डायरेक्टली, फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन द वैल्यूज ऑफ टू टर्म, ठीक है। कोई दो टर्म दे देगा और उसमें से दो टर्म यानी कि जो फॉर्मूला होता है ना एपी का, उसमें कोई सा भी एक अननोन होगा और बाकी दो नोन होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन, और बाकी फाइंड आउट करना होगा। कुल मिला के आपको मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो आपको आना चाहिए एपी में। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इस थ्योरम पे प्रूफ करने को आता है ट्राइंगल में, ठीक है। दूसरा है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। आपको पता होना चाहिए किस किस क्राइटेरिया से सिमिलैरिटी दिखाते हैं हम किसी भी ट्राइंगल में, वो सारे क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रूविंग का क्वेश्चन ही आता है इसमें। प्रूविंग क्वेश्चन फिगर दे देगा और कुछ अटपटांग फिगर टाइप ही दे देंगे और कह देंगे कि इन दोनों का सिमिलरिटी शो करो, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। तो सिमिलरिटी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, डबल एंगल सिमिलरिटी, ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, ट्रिपल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये सब मतलब आपको प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। द लास्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, फिगर बेस्ड, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होपफुली आपको सभी लोगों को याद होगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, सो हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल साइड स्क्वायर, ओके। सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और पूछे गए। देखिए ये जो चैप्टर्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक्स, ये मिनिमम है, ये पूरा चैप्टर में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस डायरेक्टली पॉइंट टू द पॉइंट में बातें कर रहा हूँ कि कौन से मिनिमम टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना ही करना है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग चैप्टर है। इसमें लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज काफी अच्छे से किया जाता है क्वेश्चंस में। समझना ही इसमें, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लिया, उसका फिगर बना लिया, देन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, ओके। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन आता है। इक्वी डिस्टेंस जो पॉइंट होते हैं, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द वर्टिसेस और वैल्यूज ऑफ पॉलीगन, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं प्रूफ से रिलेटेड आते हैं। इसमें आपको जो मेनली इवेल्युएटिंग, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज होते हैं उस पर बेस्ड आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज मतलब
जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मतलब इस टाइप के जो जितने भी 1 प्लस tan स्क्वायर जो फॉर्मूला जितने भी मतलब फॉर्मूला होते हैं इन सब पे बेस्ड कुल मिला के समेशन का आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने का प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सारे वो आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, कैसे यूज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चैप्टर 10 इज सर्कल। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा आता है टेंजेंट्स, जो मैंने देखा और भी क्वेश्चन पूछे आते हैं बट ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, इसलिए ये तो कम से कम आपको प्रैक्टिस करना ही है। टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, किसी भी आउटर पॉइंट से हम किसी सर्कल पे कैसे टेंजेंट खींचते हैं, राइट। सॉरी दिस इज नॉट अ टेंजेंट, आपको एक मिनट, ऐसे टेंजेंट। ठीक है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे मतलब किसी सर्कल पे कैसे टेंजेंट खींचते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, और आपको ड्रॉ करने को भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। कंस्ट्रक्शन में जो है मेनली एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने को आएगा, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल लाइक given triangle. Okay, so this is the question that is mostly asked during in the board exams from the construction chapter. ठीक है, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आपका आएगा। देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, द चैप्टर नंबर 12, एरिया पैरामीटर ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एरिया और पैरामीटर दोनों क्वेश्चन पूछा आता है, ज्यादातर एरिया पूछा आता है या पैरामीटर किसी सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के लिए। तो इसका फॉर्मूला है और प्रैक्टिस करना आपको तरीका क्या होता है उसका। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद मतलब प्रैक्टिस करके जाना है। द नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें देखिए पूरा फुल ऑन जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे और सारे फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा अभी तक। बस आपको उसका प्रैक्टिस करना है कि कैसे उन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। ठीक है, आपको बस यही प्रैक्टिस करना है। सो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रीशेपिंग ऑफ सॉलिड फिगर, जैसे किसी कोन में से आपको कह देगा कि ये कोन है, ठीक है, इस कोन में से कह देगा कि यहाँ से कट कर दिया तो बचे हुए का आप एरिया बताओ। ठीक है, मतलब इस टाइप से, मतलब कोई और शेप होगा और उसमें से कुछ पोर्शन कट कर देगा और उनका एरिया या उनका वॉल्यूम इस टाइप से क्वेश्चन मतलब चेंज करके, जो उनका शेप है ना वो चेंज करके क्वेश्चंस पूछेंगे। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में हमने वाटर है और किसी ट्रायंगुलर में हमको भरना है, कोनिकल शेप में भरना है, तो आपको वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन वो समझ में आना चाहिए। देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल रिमेन सेम। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है क्या इतना वॉल्यूम दूसरे जो फिगर है, जो भी फिगर में कहेगा डालने के लिए लिक्विड को, उसमें स्टोर किया जा सकता है क्या, तो आपको बस वॉल्यूम कवर कैलकुलेट करना है वाटर जो भी लिक्विड है उसका, और जिसमें नए वाले फिगर में जिसमें आपको वो लिक्विड पुट करना है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करिए। अगर सेम आता है या उससे ज्यादा आता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से ज्यादा आता है इसका, तो भाई ऑब्वियसली उसको कवर कर लेगा, अदरवाइज इट विल नॉट। तो मेनली आपको वॉल्यूम से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन यानी कोन का जो पोर्शन, टॉप पोर्शन हम हटा देते हैं यहाँ पे, तो कैसे बचेगा ये ऐसे। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। थोड़ा सा फिगर डायग्रामेटिकली उतना सही नहीं बन रहा है बट यू अंडरस्टैंड इट, ओके, यू गॉट इट कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। surface area and volume of a frustum of cone. So these are the topics from surface area and volume that are mostly asked in the board exams. The second last is statistics. So again this chapter is formula based, mean, median, mode. You have to remember the formula, how to calculate mode from a given frequency table. ये देखिए एक दो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उसी बेसिस पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बहुत ज्यादा इसमें हाथ पैर नहीं मारना है। आपको जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है किस टाइप से दिया है, एक दो टाइप के उसमें है, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो उन्हीं एक दो को आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। आपको अदर बुक है आपके पास, उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे किसी गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल से हम मोड फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फाइंडिंग, नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग द वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल व्हेन मीडियन इज गिवन। अगर मीडियन दिया हो, जैसे क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल देके आपसे मीन, मीडियन, मोड पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कोई एक वैल्यू फ्रीक्वेंसी टेबल में, एक वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, उसमें एक वैल्यू नहीं देगा और डायरेक्टली मीडियन का वैल्यू दे देगा। ठीक है, मीन, मीडियन या मोड का वैल्यू दे देगा और पूछेगा
कि फ्रीक्वेंसी टेबल में जो मिसिंग जो कॉलम है या फिर जो भी वैल्यू है उसका आप वैल्यू बताओ, मतलब उल्टा। ठीक है, हो सकता है फ्रीक्वेंसी टेबल देख के आपसे मीन मीडियन मोड पूछ दे, या फिर मीन मीडियन मोड दे के फ्रीक्वेंसी टेबल का कोई एक वैल्यू पूछ दे, तो दोनों आ सकता है। ठीक है, ग्राफिकली भी आ सकता है, ग्राफ से कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, दैट यू हैव टू नो गाइस। ओके, कैसे किसी ग्राफ से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना लो, देन यू हैव टू सॉल्व इट, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीन। एक बार फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा उसके बाद देयर इज नथिंग मच डू टू लेफ्ट, you just have to apply the formula and solve it. Okay, the last chapter is probability of occurrence of an event. This single question asked many times, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितनी बार अकर होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन पर्टिकुलर इवेंट। ओके, so these topics, so this was the last topic. So coming back, I can assure you that there is nothing much left that I have to discuss. If you have not uh, understand any topic, just push back the video and watch it again. Okay, किसी भी तरह का अगर डाउट है आपको, just let me know in the comment box. Guys, see, you have to practice very hard, you have to work hard. There is not very much time left for the exams. Okay, anytime soon it can happen due to corona. Do not think that due to corona crisis the exams are going to postpone. It will happen, अदरवाइज हाई विल द रिजल्ट डिक्लेयर्ड। ओके, बाकी बच्चों का भी रिजल्ट अभी रुका हुआ है, फाइनल रिजल्ट, और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो एक साथ ही सभी का रिजल्ट प्रिंट आउट होके आएगा फाइनली। ठीक है, तो विद इन अ मंथ या विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ ये एग्जाम करा दिया जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा, आप ऐसा मान के चलिए कि 20 डेज के आप प्रिपरेशन टाइम बनाइए, 20 डेज का, और उसमें सारा प्रैक्टिस करिए। आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल बी बेनिफिटेड। कोई और नहीं, आपके घर परिवार नहीं, आपका स्कूल नहीं, यू गाइज विल बी बेनिफिटेड। ये आपके पास चांस है कि आप इसी बार सीबीएसई का एग्जाम क्लियर कर लो। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट नहीं करना है। 3 साल तक आप लगातार कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 साल अपना खराब करो। बहुत सारे काम है लाइफ में करने हैं आपको, ठीक है, बहुत सारा एंजॉयमेंट है, बट आफ्टर स्टडी ओनली। एक बार पहले कंप्लीट कर लो अपने स्टडीज, देन यू एंजॉय एज मच यू वांट। ठीक है, अभी इसके बाद 11th 12th आपका आएगा, 11th में एडमिशन के लिए आपको रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, दिस इज द चांस, जस्ट गो फॉर इट, प्रैक्टिस वेरी हार्ड, प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन यू वांट। एटलीस्ट लास्ट 2 years का बोर्ड का पेपर और कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर और इस बार का बोर्ड का पेपर आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। डू नॉट लीव इट टू अदरवाइज। ओके, किसी भी सिचुएशन में ये छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सर। ठीक है गाइज, किसी भी तरह का अभी भी डाउट है होगा अगर आपको, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व द सिचुएशंस। थैंक यू, होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइज। ओके, थैंक यू।